Okay. So last time we discussed the different conformations of butane and ethane, and now let's go ahead with the conformers of butane in detail. So these are the conformers of butane. Now, when we were discussing conformers, this is also one important thing, that is order of stability of the above conformers. So if I talk about the conformers of butane, then which is the most stable conformer? Then anti is the most stable conformer. Which is anti? This is anti. What is anti? In anti, the two methyl groups of butane are opposite to each other. And so I said that the dihedral angle is 180 degrees, means the two methyl groups are diametrically opposite with respect to each other. And hence I say that the angle between these two methyl groups is 180 degrees. So such an angle is called dihedral angle. This angle is called dihedral angle. So the dihedral angle is 180 degrees and anti-conformer. Anti is the most stable conformer because the repulsions are minimum. Which is the second most stable conformer? Gauche. Gauche is the second most stable conformer. This is gauche. What is gauche conformer of butane? Gauche conformer of butane is that conformer where the angle between the two methyl groups is 60 degrees. So it's called gauche conformer. Okay. This is fully eclipsed or syn conformer. What is the meaning of fully eclipsed? Fully eclipsed means this as well as this. Both the methyl groups are lined up one next to the other. So they are lined up in one direction. Hence, I say that the dihedral angle is 0 degree. That means both the methyl groups are towards the same direction. So it's called fully eclipsed or syn. This is the least stable conformer of butane because the repulsions are more, the torsional strain and the steric hindrance are more. And coming to the partially eclipsed conformer, in partially eclipsed conformer, the dihedral angle is 120 degrees. This is a little more stable than fully eclipsed, but definitely less stable than gauche and anti. So we can say that this is the correct order of stability of the above conformers of butane. Okay, any other conformer except these four mentioned above is called a skew conformer. We have discussed only these four conformers of butane. So there could be other conformers as well corresponding to different angles of rotation. So any other conformer other than these four is called a skew conformer. SKEW, skew. Sir, there was a network connection issue. Could you please show the first point? I was discussing the stability, which is more stable, which is the least stable stability of conformers of butane.
So except for these four, if I Thank you, sir. try to draw any other conformer, it is called a skew conformer. So what is skew conformer? A skew conformer is any conformer other than eclipsed and staggered. Excluding eclipsed and staggered conformers, whatever else we get is called a skew conformer. I told you there are infinite conformers possible for a particular molecule. So we study only the two types. Major two types of conformers are eclipsed and staggered. अगर उन दोनों को छोड़ के बाकी conformers की बात की जाए तो उनको बोलते हैं skew conformers. यानी eclipsed और staggered को छोड़ के जो बाकी conformers होते हैं उनको बोलते हैं skew conformers. अब ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, कन्फर्मर के ऊपर है. आप क्वेश्चन लिखो, then I'll explain. Write down the question. This is the question. Okay, copy हो गया A और B दोनों के. So A is one conformer, B is the other conformer. हो गया ड्रॉ करके. Yes. क्वेश्चन क्या पूछता है देखते हैं. Do A and B represent the same molecule? अब देखो मॉलिक्यूल सेम मतलब क्या है, मतलब यह है कि वो मॉलिक्यूल के कन्फॉर्मर्स अलग अलग हो सकते हैं लेकिन वो जो बेसिक मॉलिक्यूल है वो सेम है. जैसा ब्यूटेन देख रहे थे, तो ब्यूटेन तो एक मॉलिक्यूल है ना, तो उस मॉलिक्यूल के अलग अलग कन्फॉर्मर्स को देख रहे थे हम लोग. तो पॉसिबल कन्फॉर्मर्स तो इनफाइनाइट है लेकिन मॉलिक्यूल तो वही है ना, हम लोग ब्यूटेन के ही कन्फॉर्मर्स को ड्रॉ कर रहे थे राइट, जब देख रहे थे. तो मतलब वो सारे के सारे कन्फॉर्मर्स जो हम लोग ड्रॉ कर रहे थे ऊपर, ये जितने भी कन्फॉर्मर्स हम लोगों ने ड्रॉ किए हैं 4 3 2 1, ऑल ऑफ दीज रिप्रेजेंट ब्यूटेन ओनली. वो कन्फॉर्मर्स अलग अलग है लेकिन है तो वो ब्यूटेन के ही, यानी मॉलिक्यूल जो है वो सेम है. कौन सा मॉलिक्यूल है? ब्यूटेन. तो वही यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में कि क्या ए और बी दो कन्फॉर्मर्स जो यहाँ बनाए गए हैं, डू दे रिप्रेजेंट द सेम मॉलिक्यूल? तो वो हमको चेक करना पड़ेगा. कैसे चेक करेंगे? देखो बहुत आसान है. आपको क्या याद रखना है कि अगर मॉलिक्यूल सेम है, अगर मॉलिक्यूल सेम है तो कन्फॉर्मर को रोटेट करके हम लोग ला सकते हैं. मतलब क्या? अगर ऐसा हुआ कि ए को मैंने रोटेट कर दिया पर्टिकुलर किसी एंगल से और फिर मुझे बी मिल गया, तो इसका मतलब ए और बी विल रिप्रेजेंट द सेम मॉलिक्यूल. सिमिलरली अगर मैंने बी को रोटेट कर दिया और फिर मुझे ए मिल गया, तो भी मुझे यही कहना है कि ए एंड बी बोथ रिप्रेजेंट द सेम मॉलिक्यूल. तो रोटेशन के बाद अगर हमें आइडेंटिकल मिल रहे हैं चीजें, तो मतलब क्या है, वो कन्फॉर्मर्स एक ही मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं. सो लेट्स सी. अब ए को देखो और अब बी को देखो. अब मुझे बताओ रोटेशन करके अगर देखना है तो कैसे देखेंगे? या तो ऐसे करके देख लो या फिर ऐसे करके देख लो, कैसे भी करो, दैट डजंट मैटर. तो अगर मैंने रोटेट किया लेट्स से इस तरीके से अराउंड दिस पर्टिकुलर कार्बन एटम, तो क्या हो जाएगा फिर?
ऐसा हो जाएगा ना, CH3 इधर आ जाएगा, करेक्ट, ये इधर आ जाएगा, और ये इधर चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा इफ आई रोटेट इन दिस मैनर, करेक्ट। और अगर मैंने ऐसा रोटेट किया अराउंड दिस कार्बन एटम, फिर से मैंने रोटेट करके देखा ऐसा, फिर ये चला जाएगा यहाँ और ये चला जाएगा यहाँ, तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl और यहाँ पे H, ऐसा हो जाता है रोटेशन के बाद। तो अगर मैंने इस तरीके से रोटेट किया A के अंदर तो मुझे ये मिल सकता है, मतलब ये और ये दोनों के दोनों एक ही मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने रोटेट करके मुझे दो मिले। रोटेशन के बाद कन्फॉर्मर्स जो भी मिलते हैं सारे के सारे कन्फॉर्मर्स एक ही मॉलिक्यूल के हैं। लेट्स चेक बी नाउ। देखो बी वही है जो मैंने यहाँ पे लिखा है रोटेट करने के बाद। This is exactly same as this, which means B is obtained after I perform rotation as shown in A. मतलब A के अंदर रोटेशन करूं तो मुझे B मिल जाता है। Hence I can say both A and B represent the same molecule. तो वही यहाँ पे दिखाया गया है कि आपका A है, A के अंदर रोटेट करके दिखाया है मैंने, रोटेशन के बाद मुझे जो मिला है exactly मुझे B है, and hence I say A and B represent the same molecule. क्या मिला है रोटेशन के बाद? ऐसा जो मैंने ड्रॉ किया था ऊपर। तो अगर मैंने रोटेट किया ए के अंदर इस तरीके से जैसे दिखा है एरोस के डायरेक्शन से, तो मुझे ये चीज मिलती है। अब ये चीज एग्जैक्टली सेम एज बी है, चेक करो, दिस इज बी। Hence I say A and B both represent the same molecule. तो रोटेशन से चाहे आप ऐसे रोटेट करो या ऐसे रोटेट करो, दैट डजंट मैटर। रोटेशन के बाद अगर आपको सेम चीज आ रही है, मतलब कन्फॉर्मर, अगर एक कन्फॉर्मर को हम लोग दूसरे कन्फॉर्मर में चेंज कर पा रहे हैं रोटेशन से, मतलब वो मॉलिक्यूल जो है वो सेम है, सेम मॉलिक्यूल के ही अलग अलग कन्फॉर्मर्स इसका मतलब। Is it clear? Any doubt? डाउट है किसी को इसमें? कैसे रोटेशन से सेम आ रहा है तो बताओ। Yes, is it clear? Yes, sir. All right. कन्फॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन को देख लेते हैं एक बार, क्योंकि हम लोग अभी एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो एनर्जी डायग्राम बोलते हैं उस ग्राफ को। सो आई हैव अगेन ड्रॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्फॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन। एक तो एंटी था, ये वन एंटी है, ओके, टू पार्शियली एक्लिप्स्ड,
3 is गॉश. Why गॉश? देखो इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्रीज है तो गॉश हो गया. एंड फोर्थ इज फुल्ली एक्लिप्स्ड. तो आप एक काम करो, पहले अभी ड्रॉ कर लो, हेडिंग डालो, स्टार्ट राइटिंग एंड देन आई एक्सप्लेन. ये तो मैंने वैसे बता दिया कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं, बट इसके आगे का जो ग्राफ है वो हम लोग अभी बात करेंगे. तो आप हेडिंग डाल दो यहाँ पे, स्टार्ट ड्राइंग द स्ट्रक्चर्स. Please draw the structures and name them the way I have named 1, 2, 3, 4. ओके, यहाँ तक ड्रॉ करके हो गया? नो सर, वेट. ओके, कर लो ड्रॉ.
ओके डन यहाँ तक पूरा। ओके नाउ सी, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, रेफरेंस को लेते हैं 1 वाला, लेट्स टेक दिस एज अ रेफरेंस। ओके एंड अब कैसे हम लोग 1 से 2 तक पहुंच रहे हैं मैं वो दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं रेफरेंस मान लूं राइट, और 1 से मैं 2 तक कैसे पहुंच रहा हूँ, 1 से मैं 2 तक पहुंच रहा हूँ, जो पीछे वाला कार्बन है यानी जो बड़ा वाला सर्कल है, वो जो ग्रुप्स है उनको मैंने इस तरीके से रोटेट कर दिया 60 डिग्री एंगल से। अगर मैंने 60 डिग्री एंगल से रोटेट कर दिया तो ही ये वाला मिथाइल यहाँ आ जाएगा ना, और ये वाला हाइड्रोजन इधर, और ये वाला हाइड्रोजन इधर। तो पीछे के जो ग्रुप्स है, पीछे वाले कार्बन एटम के साथ जो ग्रुप्स, वो मैं अगर रोटेट करूं 60 डिग्री से तो मुझे 2 मिलेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से 2 कैसे आ रहा है। फ्रॉम 1 how am I getting 2? So if you notice carefully, from 1 I'm getting 2 if I rotate the groups attached to the back carbon by 60 degrees. तो ही ये 1 से 2 मिलेगा। ओके तो 1 से 2 कैसे मिला, जो बड़े वाले सर्कल को ग्रुप्स अटैच्ड है उनको मैंने 60 डिग्री से रोटेट कर दिया तो मुझे 2 मिला। वैसे ही अगर 2 से मुझे 3 की ओर जाना है, वापस मैं वही काम करूंगा, पीछे वाले जो सर्कल है, पीछे वाला जो कार्बन है यानी जो बड़ा सर्कल है, उसके ग्रुप्स को वापस मैं 60 डिग्री से रोटेट कर दूंगा। वापस मैं अगर 60 डिग्री से रोटेट कर दूंगा तो ऐसा आ जाएगा, करेक्ट। फिर से ये वाला CH इधर आ जाएगा, ये वाला H इधर आ जाएगा, और ये वाला H इधर आ जाएगा। तो वही किया। 2 से 3 तक कैसा है, हम लोग पीछे वाले कार्बन के ग्रुप्स को रोटेट करके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले वाले जो फ्रंट कार्बन है उसको फिक्स रख रहे हैं। फ्रंट कार्बन के ग्रुप्स को हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, बस पीछे वाले कार्बन के ग्रुप्स को रोटेट करके किया है। आप चाहते हो तो आप फ्रंट वाले को भी कर सकते हो, तो आपके ऊपर है। तो मैंने पीछे वाले कार्बन के हिसाब से किया है। थर्ड आ गया, वापस थर्ड से फोर्थ कैसे करेंगे, वही काम करेंगे फिर से थर्ड से फोर्थ के लिए। पीछे वाले जो कार्बन के ग्रुप्स हैं उनको वापस मैं 60 डिग्री से रोटेट कर दूंगा। तो ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, राइट। ये वाला मिथाइल इधर आ जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, चल तू बोल। ओके फोटो तो ऐसा लेते आ हैं। जाएगा, फिर फुल्ली एक्लिप्स आ जाएगा। फिर एनी डाउट, चेक करो, बताओ कैसे आ रहा है ये। वो मैं बता रहा हूँ कि पीछे वाले जो ग्रुप्स है उनको मैंने रोटेट किया है। ओके तो जो पीछे वाले कार्बन के ग्रुप्स है उनको मैंने रोटेट किया है 60 डिग्री से। सो 1 से 2 मिला, फिर 2 से 3 मिला, फिर 3 से 4 मिला, करेक्ट। नाउ आई वांट टू ड्रॉ ग्राफ। अच्छा अब देखो 4 से अगर मैंने वापस रोटेट किया तो क्या होगा, पीछे वाले जो ग्रुप्स है वापस मैंने उनको रोटेट किया तो ऐसा हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग रोटेशन करके दिखा सकते हैं। अगर वापस मैंने किया रोटेट तो ऐसा हो जाएगा, वापस पीछे वाले ग्रुप्स को रोटेट किया तो वापस क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मैं इसे रोटेशन कर करके अलग अलग कन्फॉर्मर्स ला सकता हूं। तो पीछे वाले जो कार्बन एटम के ग्रुप्स है उनके ग्रुप्स को मैंने रोटेट करके ये सब किया है। फ्रंट वाले कार्बन को मैंने इंटैक्ट रखा है, एज इट इज रखा है। वापस यहाँ पे रोटेट करो तो क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और फिर ये वाला इधर आएगा, तो ये मिल जाएगा।
ड्रॉ कर लूं 5, 6 और 7 भी। Draw the 5th, 6th and 7th conformers. तो फिर थर्ड और फिफ्थ कंफर्म में कोई डिफरेंस नहीं, मतलब हाँ एग्जैक्टली, सो थर्ड और फिफ्थ में कोई डिफरेंस नहीं है, करेक्ट। तो वही मैं दिखा रहा हूँ, फिफ्थ इज गॉश, थर्ड इज आल्सो गॉश, करेक्ट। लेकिन मैं रोटेट करके दिखा रहा हूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ ड्रॉ कर लो। थर्ड भी गॉश है, फिफ्थ भी गॉश है, सो थर्ड एंड फिफ्थ आर सेम। सिमिलरली सिक्स्थ इज सेम एज सेकंड, सेकंड भी पार्शियली एक्लिप्स्ड है, सिक्स्थ भी पार्शियली एक्लिप्स्ड है, करेक्ट। तो वही हो रहा है, रेपिटेशन हो रहा है, मतलब रोटेट करते करते। आप बना लो फिर भी फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, बिकॉज मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करूंगा ना उनको, इसके लिए बोल रहा हूँ बना लो। डन। सर आप ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो सिक्स्थ वालों को। ओके डन, यहाँ तक 7 तक। हो गया खत्म। Is it done till you 7 तक?
क्या हो गया यहाँ तक कॉपी करके 7 तक? ओके, अब देखते हैं एनर्जी डायग्राम का मतलब क्या है. Now tell me, if something has high energy, is it more stable or less stable? Less stable. Yes. Energy is inversely proportional to stability. Energy ज्यादा तो stability कम. अब स्टेबिलिटी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था आज कि एंटी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ब्यूटेन के कन्फॉर्मर्स में से, फॉलोड बाय गॉश, फॉलोड बाय पार्शियली एक्लिप्स्ड, एंड सबसे कम स्टेबल होता है फुल्ली एक्लिप्स्ड. दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. इफ दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, then the order of energies will be the other way around. तो ऐसा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एनर्जीज. ये हो जाएगा क्या आपका, ये हो जाएगा क्या, ऑर्डर ऑफ एनर्जीज. ऐसा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एनर्जी. राइट, ग्राफ देखते हैं. एनर्जी इज ऑन द वाई एक्सिस. तो 1 देखो, 1 की एनर्जी सबसे कम है, मतलब एंटी है 1. यस, एंटी इज 1. अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे 1 एंटी फॉर्म था. यस, सो दिस वाज 1. ये 1 था एंटी फॉर्म, तो इसकी एनर्जी सबसे कम. करेक्ट. ऐसा करके आप एनर्जी डायग्राम में दिखा सकते हो किसकी एनर्जी ज्यादा है और किसकी एनर्जी कम है. सो लेट्स सी दैट. अब ग्राफ को अगर आप देखोगे तो 1 भी एंटी है और ये 7 भी एंटी है ना, ये भी एंटी है. चेक करो अब इसमें ग्राफ में, अगर 1 भी एंटी है और 7 भी एंटी है तो 1 और 7 दोनों की जो एनर्जी है वो सेम है, बिकॉज 1 इज एग्जैक्टली सेम एज 7. 1 भी एंटी है, 7 भी एंटी है, तो 1 और 7 जो है वो एक्चुअली सेम ही है ना. तो एनर्जी डायग्राम अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो 1 और 7 both have the same energy because they represent the same conformer. तो एंटी की एनर्जी सबसे कम होगी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एनर्जीज को चेक करो. ऑर्डर ऑफ एनर्जीज में सबसे कम एनर्जी किसकी है, एंटी की, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, फुल्ली एक्लिप्स्ड की है. तो एंटी की एनर्जी सबसे कम, फुल्ली एक्लिप्स्ड की एनर्जी सबसे ज्यादा, और बीच में कौन है, गॉश और पार्शियली एक्लिप्स्ड. तो गॉश की एनर्जी एंटी से ज्यादा है, पार्शियली एक्लिप्स्ड की एनर्जी गॉश से ज्यादा है. तो ऐसा है ऑर्डर. तो उस हिसाब से हम लोग ग्राफ में भी दिखा सकते हैं. करेक्ट. So let's now see the graph.
So let's look at the graph. ये है ग्राफ आपका, जो ये 1 है, एंटी है, 7 भी है, एंटी है। तो देखो ये दोनों का सेम एनर्जी है, 1 फर्स्ट और 7 का। 1 और 7 जो है वो सेम लेवल पे है। अब बारी आती है 2 और 6 की। 2 और 6 वापस देखो सेम एनर्जी पे है, राइट? व्हाट इज 2 एंड व्हाट इज 6? 6 is partially eclipsed and 2 is also partially eclipsed. So 2 and 6 have the same energy because both are partially eclipsed. So 2 and 6 हो गया। अब देखो 3 और 5, 3 and 5 have the same energy again. 3 और 5 कौन है? Gauche. 5 is gauche, 3 is also gauche. So 3 and 5 will have the same energy. So 3 and 5. और फोर्थ वाले की एनर्जी सबसे ज्यादा because it's the least stable. फोर्थ कौन है? फोर्थ is fully eclipsed. Fully eclipsed की एनर्जी सबसे ज्यादा because it's the least stable. तो इसके लिए यहाँ से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। Is it clear? तो ये एनर्जी कर्व है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे एनर्जी कर्व को तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो है फोर्थ वाले की। तो आपको अगर ग्राफ दे दिया और बता दिया कि which conformer represents the fully eclipsed conformer, तो आप बोलोगे फोर्थ represents fully eclipsed। क्यों ऐसा? क्योंकि फुल्ली एक्लिप्स वाले की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। सो फुल्ली जो एक्लिप्स है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे कर्व को अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी उसी की दिख रही है, फोर्थ वाले की। हेंस फोर्थ शुड बी द फुल्ली एक्लिप्स्ड कंफर्मर। और सबसे कम एनर्जी है फर्स्ट और सेवेंथ की। तो फर्स्ट और सेवेंथ रिप्रेजेंट एंटी कंफर्मर बिकॉज एंटी की एनर्जी सबसे कम होती है कि एंटी इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ ब्यूटेन। और फिर थर्ड एंड फिफ्थ विल बी गॉश बिकॉज अगर आप चेक करोगे तो थर्ड की जो एनर्जी है वो फर्स्ट से तो ज्यादा है लेकिन बाकी से कम है, तो फिर वो गॉश हो जाएगा। बिकॉज एंटी के बाद ही कौन होता है स्टेबल? एंटी के बाद स्टेबल होता है गॉश। और फिर होता है आपका पार्शियली एक्लिप्स्ड। सो 2 and 6 विल बी पार्शियली एक्लिप्स्ड बिकॉज अगर ये गॉश है तो उससे इमीडिएटली ज्यादा एनर्जी कौन है? 2 और 6। Hence 2 and 6 will represent partially eclipsed. तो अगर आपको ऐसा कन्फॉर्मर्स का ये दे दिया, ग्राफ दे दिया, एनर्जी लेवल डायग्राम दे दिया और पहचानने बोला कि कौन सा एंटी है कौन सा फुल्ली एक्लिप्स्ड है, तो आप देख के बता सकते हो बिकॉज दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी का उल्टा हो जाएगा एनर्जी का ऑर्डर। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। This will be the order of energies. एंटी की एनर्जी सबसे कम, फिर गॉश की एनर्जी, फिर पार्शियली एक्लिप्स की एनर्जी और फिर फुल्ली एक्लिप्स की एनर्जी। Yes, any doubt? Is it clear? ये एंगल्स जो है वो क्या है? ये एंगल से फर्स्ट को 60 डिग्री से घुमाया तो 2 आया। वो जो बड़ा वाला सर्कल था 1 में उसको 60 डिग्री से घुमाया था तो 2 आया था ना। इसके लिए 60 डिग्री वहां पे लिखा है। ये 1 है, इसको अगर 60 डिग्री से घुमा दोगे तो 2 आ जाएगा। वापस 2 को 60 डिग्री से घुमा दोगे तो 3 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे वही लिखा है ग्राफ में।
वही यहाँ पे है ग्राफ में, क्या है 1 को 60 डिग्री से घुमाया तो 2 आया, फिर 2 को 60 डिग्री से घुमाया तो 3 आया। इसके लिए देखो 2 और 3 जो लिखा है, ये 2 है ये 3 है, उनके बीच का जो ये डिफरेंस है ये वापस क्या है 60 डिग्री का ही है, बिकॉज दिस इज 60 एंड दिस 120, सो द डिफरेंस इज 60 डिग्री, व्हिच मींस 2 का जो बड़ा सर्कल है उसके पीछे के ग्रुप्स को मैंने अगर 60 डिग्री से घुमाया तो 3 आएगा, 3 के ग्रुप्स को 60 डिग्री से घुमाया तो 4 आएगा, 4 के ग्रुप को 60 डिग्री से घुमाया तो 5 आएगा, एंड सो ऑन। ऐसा करके घुमाते जाओगे तो ऐसे आता रहेगा। तो एनर्जी लेवल डायग्राम को देख के हम लोग बोल सकते हैं कि कौन सा कंफॉर्मर की एनर्जी ज्यादा है, कौन से कंफॉर्मर की एनर्जी कम है, बिकॉज यू शुड नोट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, whatever is the order of stability, that is the reverse of order of energies. Okay, fine. तो ये कंक्लूजन था, 1 and 7 have the same energy. Why? As both are anti. 1 and 7 both are anti. फिर 2 and 6 क्या है? 2 and 6 है partially eclipsed. So 2 and 6 में says both are partially eclipsed. Three and 5 have the same energy. ये दोनों के दोनों क्या है? Both are gauche. Okay. And fourth is the one having highest energy. वो क्या है? वो है fully eclipsed. Okay. So next part, chair conformers of cyclohexane. This is the last part of the chapter. इसको समझ लेते हैं. Chair conformers of cyclohexane. इस पर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कैसे वो बताऊंगा बाद में, पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है. साइक्लोहेक्सेन का जो मॉलिक्यूल है वो आपको ऐसा दिखता है, आप ड्रॉ करते हो जब, बट एक्चुअली ये एग्जिस्ट ऐसे फॉर्म में नहीं करता है, क्योंकि ऐसे फॉर्म में अगर एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन थोड़ा ज्यादा होता है. ये जो एंगल्स है ना, ये एंगल स्ट्रेन ज्यादा है. सो टू रिड्यूस द एंगल स्ट्रेन, cyclohexane exists as chair. अब चेयर कैसा होता है देखो, इस तरीके का जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर भी वो एक चेयर है, मतलब ऐसा एक चेयर. दिस इज वन चेयर पॉसिबल, ऐसे दिखाते हैं हम लोग, दिस वन टाइप ऑफ चेयर एंड द अदर टाइप ऑफ चेयर इज दिस, मतलब ऐसा. ऐसा लग रहा है कि ये चेयर है, राइट. इसके लिए बोलते हैं इसको कि चेयर कन्फॉर्मर. तो आपको दोनों चेयर फॉर्म्स आने चाहिए, ये वाला भी और ये वाला भी. ना साइक्लोहेक्सेन अगर है तो कार्बन एटम्स के साथ क्या क्या जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हुए हैं. साइक्लोहेक्सेन इज व्हाट? C6H12. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन. तो ये लोग हम लोग जो ड्रॉ करते हैं साइक्लोहेक्सेन, ये एक्चुअली क्या है? ये सब H ही है ना, H. ऑल आर हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू. ये सारे के सारे क्या है? हाइड्रोजन एटम्स. तो उसको चेयर फॉर्म में कैसे दिखाना है देख लो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट चेयर व्हिच आई हैव ड्रॉन इज लाइक दिस. आपको हमेशा रेफरेंस ये वाला लेना है जो ऊपर वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट रेफरेंस लो हमेशा. सो दिस इज द रेफरेंस फॉर यू.
रेफरेंस मतलब क्या, इसके हिसाब से आप आगे बढ़ोगे। तो दिस इज द रेफरेंस, दिस इज द रेफरेंस फॉर योर कन्वीनियंस। अब मतलब क्या है, देखो आप क्या करोगे, ऐसे रेड लाइन जो दिख रही है ऊपर, दैट इज अ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन मतलब एग्जैक्टली वर्टिकल है, ऊपर है, स्ट्रेट है। तो वर्टिकल लाइन जो ऊपर मैंने रेड में बनाया है ना, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन गोइंग अपवर्ड। सो स्ट्रेट लाइन गोइंग अपवर्ड लाइक दिस। वैसे देखो यहाँ पे वापस ऐसा लाइन डाउनवर्ड है, स्ट्रेट लाइन गोइंग डाउनवर्ड, दैट्स अगेन अ वर्टिकल लाइन। कहने का मतलब क्या है, जितने भी रेड वाले आपको लाइंस दिख रहे हैं इसमें, all these red lines are vertical. Some are upward and some are downward, but they are definitely vertical. They are not slanted or tilted. All are exactly vertical. कुछ upward है और कुछ downward है। अब वो कैसे तय करना है, वो ऐसे डिसाइड करना है। इसके लिए मैंने बोला कि इसको रेफरेंस लो। अगर आप इसको रेफरेंस लोगे तो यहीं से चालू करोगे आप ड्रॉ करना। तो यहाँ ऊपर डालोगे एक लाइन, जो रेड वाली लाइन आपको दिख रही है, तो वो अपवर्ड है। अगर वहां पे अपवर्ड ड्रॉ किया है तो नेक्स्ट वाले पे डाउनवर्ड ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जो वर्टिकल वाला होगा वो एडजेसेंट कार्बन पे डाउनवर्ड होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये चेयर फॉर्म है तो पहला इधर से मैं स्टार्ट अगर करूं ड्रॉ करना, तो यहाँ पे ऐसा एक लाइन हो गया वर्टिकल। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे मुझे वर्टिकल नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा, वापस उसके नेक्स्ट वाला वर्टिकल ऊपर, वापस नेक्स्ट वाला वर्टिकल नीचे, वापस इसके नेक्स्ट वाला वर्टिकल ऊपर, और वापस फिर नेक्स्ट वाला वर्टिकल इधर नीचे। तो जितने भी वर्टिकल लाइन है वो मैंने आपको दिखा दिए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरीके से करना है। सो ऑल्टरनेट जाना है, यहाँ पे ऊपर बना है तो नीचे तो उसके नेक्स्ट वाला नीचे, फिर उसके नेक्स्ट वाला ऊपर, एंड सो ऑन। These all are red lines which I have shown you, red lines. So the vertical ones have been shown by red color. जितने भी वर्टिकल वाले हैं जो रेड कलर से ड्रॉ किए हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशंस। क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशंस। All the vertical red lines represent axial bonds, so the groups are at axial positions. हो गया यहाँ तक। अब चालू वापस यहीं से करना है, नीचे वाला बॉन्ड अभी याद रखो। चेयर कन्फॉर्मर में जब आप ड्रॉ करते हो तो ऊपर भी ड्रॉ करना पड़ेगा, नीचे भी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, लेकिन जो वर्टिकल होगा हमेशा उसको एक्सियल बोलेंगे, और जो टेढ़ा होगा, जैसे जो जितने भी ब्लू लाइंस मैंने ड्रॉ किए हैं वो देखो सारे के सारे टेढ़े हैं। तो जितने भी ब्लू लाइंस हैं वो टेढ़े हैं, तो जो टेढ़े होते हैं उनको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशंस। क्या बोलते हैं उनको, इक्वेटोरियल पोजीशंस। So all the red lines represent axial positions, all the blue lines represent equatorial positions. ये पहली बात है। तो दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये कि हम लोग चालू करेंगे हमेशा यहां से। यहाँ पे एक्सियल ऊपर है तो इक्वेटोरियल वाला नीचे होगा, ये हो गया इक्वेटोरियल। अब यहाँ पे एक्सियल नीचे है तो यहाँ पे इक्वेटोरियल हो जाएगा ऊपर वाला। यहाँ पे एक्सियल ऊपर है तो इक्वेटोरियल हो जाएगा नीचे वाला। यहाँ पे एक्सियल नीचे है तो इक्वेटोरियल हो जाएगा ऊपर वाला। यहाँ पे एक्सियल ऊपर है तो इक्वेटोरियल हो गया नीचे वाला। यहाँ पे एक्सियल नीचे है तो इक्वेटोरियल हो गया ऊपर वाला। हर एक कार्बन एटम पे आपको ऊपर नीचे दो बॉन्ड्स दिखाने हैं, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल, राइट। So all the red lines represent axial positions because the lines are vertical, and all the blue lines represent equatorial positions because they are not straight, they are a bit tilted or slanted.
चालू हमेशा यहाँ से करोगे तो एक्सियल जो यहाँ पे होता है वो हमेशा वर्टिकल होता है और ऊपर की ओर होता है। जैसे देखो यहाँ पे एक्सियल ऊपर है, दिस इज व्हाट अपवर्ड एंड दिस इज व्हाट डाउनवर्ड। हर एक कार्बन एटम पे अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों दिखाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अपवर्ड है वो एक्सियल से चालू करना पड़ेगा और डाउनवर्ड जो है यहाँ पे वो इक्वेटोरियल होगा। फिर अल्टरनेट जाना है। अल्टरनेट कैसे गए? यहाँ पे अगर अपवर्ड एक्सियल है तो यहाँ पे अब देखो आप डाउनवर्ड एक्सियल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डाउनवर्ड बट एक्सियल, एंड ये वाला जो हो जाएगा दिस इज अपवर्ड एंड इक्वेटोरियल। तो ऐसे अल्टरनेट जाना है। ओके, तो रेफरेंस फिक्स कर लो। रेफरेंस है ये वाला, दिस इज द रेफरेंस। तो रेफरेंस पॉइंट है हमारा, वहां पे जो वर्टिकल होता है स्ट्रेट दैट इज अपवर्ड, तो वो ऊपर जाता है। अगर आपको ये पता है कि वहां पे ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप बाजू वाले कार्बन पे फिर एक्सियल को नीचे बनाओगे एंड सो ऑन, ऑल्टरनेट जाते रहोगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इज इट क्लियर? एनी डाउट? यस, डाउट है तो बताओ इसका। कोई डाउट है? ओके, अब नेक्स्ट वाला सेकंड वाला चेयर फॉर्म। सेकंड वाले चेयर फॉर्म में रेफरेंस हमेशा इसको मानना है। तो इसमें अभी हमें चालू करना है एक्सियल को नीचे से। बस पता चल गया ना? अगर ये पता है कि यहाँ पे एक्सियल नीचे है तो फिर इक्वेटोरियल वाला ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेटोरियल वाला। अगर यहाँ पे आपका एक्सियल नीचे है तो इसी पॉइंट पे इक्वेटोरियल रहेगा ऊपर। अगर ये पता चल गया तो बाजू वाले पे आप उल्टा कर दोगे। बाजू वाले पे क्या करोगे? फिर एक्सियल को ऊपर, इक्वेटोरियल को नीचे, एंड सो ऑन। फिर इसमें क्या करोगे? एक्सियल को नीचे, इक्वेटोरियल को ऊपर, यहाँ पे एक्सियल को ऊपर, इक्वेटोरियल को नीचे, यहाँ पे एक्सियल को नीचे, इक्वेटोरियल को ऊपर, यहाँ पे एक्सियल को ऊपर, इक्वेटोरियल को नीचे। तो इसके लिए मैंने बोला इसको रेफरेंस मान लो। सो दिस पॉइंट इज योर रेफरेंस। रेफरेंस मान लिया तो बाजू वाले कार्बन पे उल्टा कर देंगे। So 1 and 2 both represent chair forms of cyclohexane. Chair conformers of cyclohexane 1 and 2 both. वही यहाँ पे लिखा है कि in the above chair forms, red lines denote axial bonds and the blue lines denote equatorial bonds. दोनों के दोनों cyclohexane को represent करते हैं, इसके लिए हाइड्रोजन लगा दिए हर जगह, because cyclohexane is C6H12. अब देखो, अगर एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने बोला, दिखाता हूं मैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे चेयर फॉर्म में। अगर मानो ऐसा बोल दिया कि मुझे एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को चेयर फॉर्म में दिखाना है, तो लेट्स सी दैट। अगर मानो इसको चेयर फॉर्म में दिखाना है, किसको? यहाँ पे है मानो ऐसा क्लोरीन और यहाँ पे है मानो ब्रोमीन।
और बोला कि इसको आप चेयर फॉर्म में दिखाइए। तो कैसे दिखाएंगे आप चेक देखो, दोनों के दोनों चेयर फॉर्म्स हम लोग ड्रॉ करेंगे, दोनों के दोनों चेयर फॉर्म्स में दिखा सकते हैं इसको, करेक्ट। तो पहला ये वाला, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, पहले ये वाला हो जाएगा। पता है आपको रेफरेंस हमेशा ये होता है, दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नाउ सी हाउ आई रिप्रेजेंट, रेफरेंस पता होना चाहिए सबसे पहले। अगर ये रेफरेंस है, हमें पता है कि इस पॉइंट पे ऊपर होता है हमेशा हमारा एक्सियल, ऊपर यहाँ पे एक्सियल, और ये नीचे यहाँ पे रहेगा इक्वेटोरियल, इस तरीके से रहेगा। फिर यहाँ पे रहेगा एक्सियल नीचे और इक्वेटोरियल ऊपर, यहाँ पे रहेगा फिर से एक्सियल ऊपर और इक्वेटोरियल नीचे, एंड सो ऑन। अब मानो हम लोग को इस मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, तो कैसे करेंगे देखो। अभी सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, 1 2 3। आप नंबर इट इन दिस मैनर, यू कैन नंबर इट एनी हाउ। यहाँ पे कोई फिक्स रूल नहीं है कि कैसे नंबर करेंगे, आप कैसे भी नंबरिंग कर सकते हो, कहां से भी आप चालू कर सकते हो। तो मैंने इस तरीके से किया है 1 2 3। अब अगर 1 2 3 मैंने ऐसे किया है, तो चेयर फॉर्म में भी मुझे 1 2 3 ऐसे ही करना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा आपको। जिस तरीके से नंबरिंग आपने यहाँ पे किया है, उसी तरीके से नंबरिंग आपको चेयर फॉर्म में भी करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ऐसे किया है ना 1 2 3, तो चेयर फॉर्म में भी वैसे ही करना पड़ेगा। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा चेयर फॉर्म में। ये सबसे पहली बात है जो समझनी है। 1 2 3 अगर यहाँ पे जिस तरीके से किया है साइक्लोहेक्सेन वाला नॉर्मल फॉर्म में, चेयर फॉर्म में भी वैसे ही 1 2 3 लगाना है। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। 1 पे क्या है, क्लोरीन है। कहां पे है क्लोरीन, क्लोरीन इज ऑन वेज। नाउ रिमेंबर दिस मींस चेयर में वो ऊपर होना चाहिए, एंड दिस मींस वो चेयर में नीचे होना चाहिए। ये आपको याद करना पड़ेगा। ओके, इन चेयर। ओके, चेयर में कौन ऊपर होगा, चेयर फॉर्म में ऊपर वो रहेगा जो वेज पे है, और जो डैश पे है वो चेयर फॉर्म में नीचे रहेगा। इसके लिए मैंने लिख दिया है अप और डाउन। चेयर फॉर्म में अप कौन रहेगा, चेयर फॉर्म में अप रहेगा जो वेज पे है। चेयर फॉर्म में डाउन कौन रहेगा, चेयर फॉर्म में डाउन वो रहेगा जो डैश पे है। आते हैं फर्स्ट वाले कार्बन पे। यहाँ पे क्लोरीन इज ऑन वेज, क्लोरीन इज ऑन वेज मतलब ऊपर, तो यहाँ पे क्लोरीन ऊपर लगा देंगे और नीचे हाइड्रोजन। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला कार्बन पे ग्रुप्स। कम टू द थर्ड वन। थर्ड पे कौन है, ब्रोमीन। ब्रोमीन कहाँ पे है, डैश पे है। डैश मतलब डाउन, तो ब्रोमीन को हम लोग नीचे लगाएंगे, यहाँ पे ब्रोमीन लगा देंगे, और ऊपर कौन रहेगा, हाइड्रोजन। दिस इज गोइंग टू बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्म इन चेयर कन्फॉर्मर। यस, एनी डाउट तो बताओ। एनी डाउट एनीबॉडी हैज, लेट मी नो इमीडिएटली। ओके, क्लियर है सबको, डाउट है तो बताओ, रिपीट। ये समझना जरूरी है, ये बुक्स में है नहीं। ओके, नो डाउट। सेम वाले सेम मॉलिक्यूल को मैं अगर और एक चेयर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखो। अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर ऐसा चेयर लिया, पहले तो मैंने ये वाला चेयर लिया था ना, अभी अगर ऐसा चेयर लिया तो फिर रेफरेंस मैंने बोला था ना, ये वाला पॉइंट होना चाहिए आपका रेफरेंस। तो इसको 1 मानेंगे, इसको 2 और इसको 3, ऐसा करेंगे। बाय जिस तरीके से आप यहाँ नंबरिंग करते हो, अगर यहाँ पे ऐसा जा रहे हो आप,
तो यहाँ पे भी आपको ऐसा ही जाना पड़ेगा, राइट, क्लॉकवाइज। यहाँ पे क्लॉकवाइज जा रहा हो ना, तो यहाँ पे भी चेयर फॉर्म में भी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो ये क्लॉकवाइज जा रहा हूँ मैं 1 2 6 5। अब पता है आपको यहाँ पे नीचे वाला जो वर्टिकल लाइन होता है वो होता है एक्सियल। यहाँ पे एक्सियल नीचे है और इक्वेटोरियल ऊपर है, राइट। सेकंड वाले पे एक्सियल ऊपर रहेगा, इक्वेटोरियल नीचे रहेगा, ऑल्टरनेट जाता है ना। थर्ड वाले पे क्या होगा फिर? थर्ड वाले पे वापस एक्सियल नीचे रहेगा, इक्वेटोरियल ऊपर रहेगा, ऐसा हो जाएगा फिर 1 2 3 पे। लेट्स रिप्रेजेंट नाउ। 1 पे कौन है? क्लोरीन है। क्लोरीन इज ऑन वेज और डैश? क्लोरीन इज ऑन वेज। वेज मतलब अप, यहाँ पे लगा देंगे क्लोरीन को, ऐसा क्लोरीन हो जाएगा बिकॉज ये ऊपर है, और नीचे हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन। थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे कौन है? ब्रोमीन डैश पे है। डैश मतलब क्या? डैश मीन्स डाउन, डैश मीन्स डाउन, तो ब्रोमीन विल बी डाउनवर्ड। तो यहाँ पे ब्रोमीन ऐसा हो जाएगा और फिर हाइड्रोजन इधर हो जाएगा। तो ये भी चेयर कन्फर्मर है, ये वाला भी चेयर कन्फर्मर है, दोनों के दोनों चेयर कन्फर्मर्स हैं, बट बोथ आर नॉट द सेम, दे आर टू डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग द सेम मॉलिक्यूल। अगर आप देखोगे दोनों को कंपेयर करके, तो इसमें क्लोरीन इज ऑन एक्सियल पोजीशन, क्लोरीन इज ऑन एक्सियल पोजीशन, एंड ब्रोमीन इक्वेटोरियल पे है ना, इस लाइन पे, सो ब्रोमीन इज एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ऐसा है। इसमें क्या है? इसमें क्लोरीन इज ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, सो क्लोरीन इज एट इक्वेटोरियल पोजीशन, एंड ब्रोमीन किधर है? ब्रोमीन ऐसा वर्टिकल लाइन पे है, सो ब्रोमीन इज ऑन एक्सियल पोजीशन। करेक्ट। क्लोरीन इज एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ब्रोमीन इज एट एक्सियल पोजीशन, ऐसा हो जाएगा। ऑलराइट। सर एक बार सेकंड चेयर फॉर्म दिखाए ना वापस से, हाँ ये है ऊपर ना आपने लिखा था कॉमन वाला जो जनरल फॉर्म। ओके डन सर, थैंक यू। तो हो गया यहाँ पे। अभी जाते हैं हम लोग स्टेबिलिटी पे। तो पहले चेयर फॉर्म समझ में आ गए, दोनों के दोनों चेयर फॉर्म समझ में आना चाहिए, एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशंस शुड बी क्लियर, एंड नाउ वी कैन स्टार्ट विद द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होता है? रूल ये है कि फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी मैक्सिमम ग्रुप्स एंड सब्स्टिट्यूएंट्स शुड बी प्रेजेंट अलोंग इक्वेटोरियल पोजीशंस इन द चेयर कन्फॉर्मर। मतलब क्या? जो आपके कन्फॉर्मर्स आप ड्रॉ कर रहे हो चेयर फॉर्म में, चेयर कन्फॉर्मर्स आप दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, 1 and 2। ये 2 है, ये 1 है। तो पहले दोनों के दोनों ड्रॉ करके देखने हैं। क्या देखना है? देखना ये है कि फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी मैक्सिमम ग्रुप्स एंड सब्स्टिट्यूएंट्स शुड बी प्रेजेंट अलोंग इक्वेटोरियल पोजीशंस। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए तो हम लोग ऐसे कन्फॉर्मर, चेयर कन्फॉर्मर को चुनेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स लगे हुए हों इक्वेटोरियल पोजीशंस में। ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स अगर इक्वेटोरियल पोजीशंस में लगे हैं तो मतलब वो चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये पहला एक रूल है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट रूल है, वो है कि अगर टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट है
substituent के हिसाब से, मतलब if a substituent like tert butyl group is present in the cyclohexane ring, तो ऐसा वाला चेयर कन्फर्मर को चुनना है जहां पे tert butyl group is present at equatorial position. tert butyl होता क्या है? This is tert butyl. एक कार्बन के साथ तीन तीन मिथाइल ग्रुप्स जुड़े हुए रहते हैं, उसको बोलते हैं tert butyl. This entire thing is called tert butyl. तो अगर ये ग्रुप दिख गया कभी भी साइक्लोहेक्सेन के रिंग में, तो चेयर कन्फर्मर बनाते वक्त आपको ये देखना है कि दो चेयर्स बनाने के बाद, पहले आप दो चेयर्स बना लोगे और दो चेयर्स बनाने के बाद we will have to check which chair has this group at equatorial position. So the chair which has tert butyl group at equatorial position is going to be the more stable chair conformer. So this rule you will have to keep in mind. जब भी tert butyl group आएगा, तो tert butyl group को इक्वेटोरियल पोजीशन में रखना है, तो वो वाला चेयर फॉर्म जहां पे tert butyl ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे है is going to be the more stable chair form. Let's do questions तो clear हो जाएगा. First question, draw the chair forms of this. अब draw the chair forms of this में तो हमने अभी आपको बताया था कि वेज पे जो होता है वो अपवर्ड होना चाहिए और डैश पे जो होता है वो डाउनवर्ड होना चाहिए. अब दो चेयर फॉर्म्स हैं, दोनों के दोनों चेयर फॉर्म्स बनाने हैं, तो पहला वाला बना लेंगे कैसा, ऐसा हो जाएगा. यहाँ पे रेफरेंस 1, तो ये 1, ये 2, ये 3. तो ये होता है ऊपर एक्सियल, तो यहाँ पे ऊपर लगाना है मिथाइल को, हाइड्रोजन को नीचे लगाएंगे. और थर्ड वाले पे क्या करेंगे, थर्ड वाले पे भी वही है. थर्ड वाले पे क्या होगा, ऐसा होगा. तो ऊपर वाला जो है वो एक्सियल है, नीचे वाला जो है वो इक्वेटोरियल है. तो यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा और ऊपर वाले में हाइड्रोजन आ जाएगा. दिस इज वन चेयर फॉर्म. The other chair form will be like this. ये 1 है अभी, ये 2 है, ये 3 है. अब 1 पे वर्टिकल होता है, इस चेयर फॉर्म में वर्टिकल एक्सियल होता है 1 पे, तो ये हो जाएगा एक्सियल और ये हो जाएगा इक्वेटोरियल. CH3 is on wedge. Wedge means upward direction. अब यहाँ पे अपवर्ड इक्वेटोरियल है, तो यहाँ पे CH3 ऐसा हो जाएगा और हाइड्रोजन ऐसा. राइट, ये यहाँ पे एक्सियल है डाउनवर्ड, इक्वेटोरियल अपवर्ड. तो क्लोरीन यहाँ पे डाउनवर्ड बिकॉज क्लोरीन इज ऑन डैश और हाइड्रोजन विल बी अपवर्ड. तो बोथ ऑफ दीज आर चेयर फॉर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल. Right, both these are chair forms of this molecule. क्या है फर्क, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये वाला कार्बन 1 है. इस वाले में वर्टिकल जो है एक्सियल वाला वो ऊपर है, यहाँ पे जो वर्टिकल एक्सियल है वो नीचे है. तो आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि इस वाले चेयर फॉर्म में 1 पे वर्टिकल होता है एक्सियल ऊपर की तरफ, और इस वाले चेयर फॉर्म में जो एक्सियल होता है वो वर्टिकल नीचे की तरफ होता है. एक बार आपने इन दोनों पोजीशंस को लर्न कर लिया, फिर बाकी के जो कार्बन एटम्स है चेयर के वो ऑटोमेटिकली आप उल्टा कर दोगे, बाजू वाले को उल्टा कर दोगे, उसके बाजू वाले को फिर से उल्टा. राइट, ओके. तो ये यहाँ पे बना के दिखाया है मैंने. अब दोनों में से कौन सा फॉर्म ऑप्शन में दिया रहेगा वो पता नहीं हमें, इसके लिए आई शो यू बोथ द फॉर्म्स. Any one form will be shown.
तो नंबरिंग करके किया करो। मैंने यहाँ पे इस तरीके से नंबरिंग किया है, तो आपको भी यहाँ पे इस तरीके से नंबरिंग करना है और यहाँ पे भी इस तरीके से करना है। कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज कर रहे हो तो चेयर फॉर्म में भी क्लॉकवाइज ही करना पड़ेगा नंबरिंग। This numbering has got nothing to do with IUPAC numbering. जो IUPAC nomenclature के टाइम आप नंबरिंग सीखते थे, उसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। This is just to understand the positions. यहाँ पे कोई nomenclature के साथ लेना देना नहीं है, तो कैसे भी आप नंबरिंग कर सकते हो यहाँ। Okay, next question. Draw the most stable chair conformer of 1,4-dimethyl cyclohexane. Most stable chair conformer of 1,4-dimethyl cyclohexane. 1,4-dimethyl cyclohexane मतलब क्या? 1 और 4 पे मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, डाइमिथाइल है तो एक मिथाइल ग्रुप 1 पे और एक मिथाइल ग्रुप 4 पे। सो 1,4-dimethyl cyclohexane में फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन एटम्स पे मिथाइल ग्रुप्स लगे होंगे। अगर मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म चाहिए तो मैंने आपको रूल के हिसाब से लिखा था कि मैक्सिमम ग्रुप्स मस्ट बी एट इक्वेटोरियल पोजीशंस फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो दोनों के दोनों जो मिथाइल ग्रुप्स है उनको मैं इक्वेटोरियल पोजीशंस पे लगा दूंगा। अगर दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप्स को मैंने इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा दिया तो वो कन्फर्मर सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा चेयर फॉर्म का। तो ऐसा हो जाएगा फिर अगर मैं इस तरीके से बनाया है तो दिस इज इक्वेटोरियल पोजीशन, दिस इज आल्सो इक्वेटोरियल पोजीशन। दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप्स को मैंने इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा दिया। Hence, this is going to be the most stable chair conformer of 1,4-dimethyl cyclohexane. दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप्स को मैंने इक्वेटोरियल पोजीशंस पे लगा दिया। इक्वेटोरियल पोजीशंस को अगर लगा दोगे आप तो वो ज्यादा स्टेबल बन जाता है। कोई भी ग्रुप हो, मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, अगर आपका क्लोरीन, ब्रोमीन जैसे भी ग्रुप्स हो तो भी आपको कोशिश क्या करनी है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो तो वो वाला ज्यादा स्टेबल रहता है। तो इस केस में मैंने सीधा क्या कर दिया, दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप्स को इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा दिया। Hence, that is going to be the most stable conformer. ये भी आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे मिथाइल है, ये भी मिथाइल आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, राइट? बिकॉज जो स्ट्रेट वर्टिकल होता है वो एक्चुअल होता है, जो टेढ़ा होता है वो इक्वेटोरियल होता है। यहाँ पे ये वाला है इक्वेटोरियल और यहाँ पे ये वाला है इक्वेटोरियल। इसी को अगर इस तरीके से बनाना था तो कैसे बनाते हैं, तो फिर ये 1 हो जाता, ये 2, ये 3 और ये 4। तो वापस ये हो जाता एक्सियल, बिकॉज यहाँ पे एक्सियल नीचे होता है और इक्वेटोरियल ऊपर होता है, तो यहाँ पे ऐसा हो जाता CH3। और फोर्थ पोजीशन पे वही होता, क्या होता, फोर्थ पोजीशन पे भी मिथाइल ग्रुप जो रहता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाता, राइट? ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल। तो यहाँ पे CH3 लगा देते हैं और यहाँ पे H। So this represent the most stable chair conformers of 1,4-dimethyl cyclohexane. या तो आप ये बनाओ या फिर आप ये बनाओ, दोनों में ही मिथाइल ग्रुप जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशंस पे है। Hence both will be equally stable. ये यहाँ पे रीजन है, since both the methyl groups are at equatorial positions, this is the most stable chair conformer. अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी आपको डैश और वेज दे के रखा है, उसके हिसाब से हमें जाना है। मतलब डैश का मतलब नीचे लगाना है चेयर में, वेज का मतलब चेयर में वो ऊपर लगाना है। क्वेश्चन ये बोलता है ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल चेयर कन्फर्मर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे 1 लगा दिया मैंने, इसको 1 माना, 2, 3, 4, सॉरी ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसा हो जाएगा। नंबरिंग किया है मैंने। एंड इफ यू लुक एट द 5th कार्बन एटम जिसको मैंने 5 नंबर किया है, उस पे ये ग्रुप लगा हुआ है CCH3 थ्राइस।
I told you ना CCH3 thrice is called tert butyl group. CH3 thrice इसको क्या बोलते हैं? tert butyl. इसको बोलते हैं tert butyl. tert मतलब tertiary butyl group बोलते हैं इसको, CCH3 thrice. तो वही यहाँ पे लगा के रखा है, तो यहाँ पे tert butyl group आ गया. और मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब tert butyl group आ जाता है तो स्टेबल चेयर कन्फॉर्मर वो होता है जहां पे tert butyl ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो. tert butyl ग्रुप जब भी आ जाता है तो tert butyl ग्रुप हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे जिसमें होता है ना, तो वो वाला चेयर कन्फॉर्मर ज्यादा स्टेबल होता है. तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से दोनों चेयर कन्फॉर्मर्स बना के देखेंगे और फिर डिसीजन लेंगे. मानो ये वाला चेयर कन्फॉर्मर बनाते हैं तो क्या होता है, तो ऐसा बनाएंगे तो लेट्स नंबर. सो 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे 1 वर्टिक ऊपर होता है, एक्सियल, इक्वेटोरियल नीचे होता है. 2 पे क्या होता है, एक्सियल नीचे, इक्वेटोरियल ऊपर. 3 पे एक्सियल ऊपर, इक्वेटोरियल नीचे, एंड सो ऑन. 4 पे एक्सियल नीचे, इक्वेटोरियल ऊपर. 5 पे एक्सियल ऊपर, इक्वेटोरियल नीचे, एंड 6 पे एक्सियल नीचे, इक्वेटोरियल ऊपर. लगा देंगे ग्रुप्स को, देखते हैं. 1 पे क्या लगा है, मिथाइल. मिथाइल ऊपर आना चाहिए बिकॉज वेज पे लगा है, तो यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन. 2 पे है OH, बट OH इज अलोंग डैश. OH डैश पे तो OH नीचे रहेगा, तो यहाँ पे OH और ये रहेगा हाइड्रोजन. थर्ड पे कुछ नहीं है, थर्ड पे दोनों के दोनों हाइड्रोजन है. फोर्थ पे ब्रोमीन है और हाइड्रोजन है. ब्रोमीन इज ऑन डैश, इसके लिए ब्रोमीन नीचे आएगा, हाइड्रोजन ऊपर. फिफ्थ पे क्या है, टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप. इस पे क्या है, टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप. वो डैश पे है तो नीचे आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग CCH3 थ्राइस, और ऊपर क्या है, हाइड्रोजन. सिक्स पे कुछ नहीं है, मतलब दोनों के दोनों हाइड्रोजन. So this is how I can represent this chair form. करेक्ट. दूसरा चेयर फॉर्म कौन सा होगा, इस तरीके से कर सकते हैं. दूसरा चेयर फॉर्म ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6. अब यहाँ पे क्या होता है इस चेयर फॉर्म में, वी नो दैट axial is downward and equatorial is upward. ये होता है फर्स्ट कार्बन एटम यहाँ. तो फर्स्ट पे मिथाइल है, तो मिथाइल यहाँ पे इक्वेटोरियल पे, हाइड्रोजन एक्सियल पे, बिकॉज़ हाइड्रोजन नीचे आएगा. 1 पे मिथाइल को दिखाया गया है, वेज पे तो मिथाइल ऊपर आएगा. सेकंड पे OH डैश में दिखाया गया है, सेकंड पे OH डैश में दिखा है, तो OH नीचे आएगा, जो डैश पे होता है वो नीचे. यहाँ पे ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है. यहाँ पे OH ऐसा आ जाएगा, ऊपर H. थर्ड पे कुछ नहीं है. फोर्थ ये हो जाएगा, फोर्थ ये ऊपर एक्सियल, नीचे इक्वेटोरियल. फोर्थ पे क्या लगा है, ब्रोमीन. ब्रोमीन इज ऑन डैश, तो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे ब्रोमीन, और ऊपर कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन. फिफ्थ पे वी हैव द टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप एंड दैट इज ऑन डैश, तो वो नीचे आएगा. तो यहाँ पे नीचे एक्सियल है फिफ्थ पे, और ऊपर इक्वेटोरियल है. नीचे आएगा आपका टर्ट ब्यूटाइल, बिकॉज टर्ट ब्यूटाइल को डैश पे दिखाया गया है. यहाँ पे लिख देंगे ऐसा, टर्ट ब्यूटाइल. अब दोनों के दोनों चेयर फॉर्म्स बना दिए. व्हिच इज मोर स्टेबल,
लेफ्ट हैंड साइड वन और द राइट हैंड साइड वन. Yes, which is more stable? Left hand side वाला कि right hand side वाला? Yes, which is more stable? स्टेबिलिटी के रूल्स तो पता है. टर्ड ब्यूटल आ गया ना, तो टर्ड ब्यूटल कहाँ होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए? Where should tert butyl be for higher stability? टर्ट ब्यूटल कहाँ आना चाहिए स्टेबिलिटी ज्यादा के लिए? एक्सियल की इक्वेटोरियल? मैंने बोला ना वहां पे स्टेबिलिटी के रूल्स में टर्ट ब्यूटल जब भी आप देखोगे इमीडिएटली याद रखो, स्टेबिलिटी ज्यादा अगर चाहिए चेयर कन्फॉर्मर में तो टर्ट ब्यूटल ग्रुप मस्ट बी अलोंग इक्वेटोरियल पोजीशन. देखो यहाँ पे लिखा है ये वाला पॉइंट. If a bulky group like tert butyl group is present as a substituent, then the chair form which has that group along equatorial position is more stable. टर्ट ब्यूटाइल जब भी होगा तो चेयर कन्फॉर्मर में जहां टर्ट ब्यूटाइल इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो वो ज्यादा स्टेबल होता है. और कुछ बाकियों को देखना ही नहीं है. अगर टर्ट ब्यूटाइल है तो सीधा बोल देंगे टर्ट ब्यूटाइल अगर है तो वो अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे है तो वो ज्यादा स्टेबल रहेगा कन्फॉर्मर. अब बताओ, सो व्हिच इज मोर स्टेबल नाउ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड? कहाँ दिख रहा है टर्ट ब्यूटाइल इक्वेटोरियल पे? चलो लेफ्ट हैंड साइड को ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं. ए और बी में से कहाँ टर्ट ब्यूटाइल इक्वेटोरियल पोजीशन में दिख रहा है? ए में या बी में? ए में दिख रहा है ना, ये है ना टर्ट ब्यूटाइल ये वाला. और यहाँ पे टर्ट ब्यूटाइल नीचे क्यों दिख रहा है एक्सियल पे? सो ए इज मोर स्टेबल देन बी बिकॉज ए में टर्ट ब्यूटाइल इज ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन. जहां पे टर्ट ब्यूटाइल इक्वेटोरियल में रहेगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा. सो ए इज मोर स्टेबल देन बी. वही यहाँ पे लिखा है we need to put tert butyl at equatorial position in order to get the most stable conformer as is tert butyl group. जब भी tert butyl group होता है तो हमेशा हमें tert butyl group को इक्वेटोरियल पोजीशन पे डालना होता है फॉर हायर स्टेबिलिटी. सो दोनों के दोनों चेयर कन्फॉर्मर्स को बना के देखना है कि कहाँ पे tert butyl आ रहा है इक्वेटोरियल पोजीशन में. So I have made both the chair conformers of this compound. पहला वाला ये दिख रहा है सबको. Okay. A. This is the first chair conformer of this compound. And ये है दूसरा B. तो क्लियरली आपको दिख रहा है जो A है, A में tert butyl is on equatorial position. This is tert butyl. This one. ये टेढ़ा है ना ये लाइन, मतलब इक्वेटोरियल पे है. ऐसा है ना, मैं सिर्फ फिफ्थ वाला दिखा रहा हूँ यहाँ पे. ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऐसा बनाया है ना मैंने. दिस इज द फिफ्थ कार्बन एटम. तो ये एक्सियल हो गया और ये आपका इक्वेटोरियल हो गया. टेढ़ा जो होता है वो इक्वेटोरियल होता है.
तो मतलब यहाँ पे टर्ट ब्यूटाइल इज ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, हेंस A is more stable than B, because B में देखो क्या हो रहा है, वापस अगर मैं दिखाऊं, दिस इज B, ये 5th कार्बन है, यहाँ पे ऐसा हाइड्रोजन है और ऐसा टर्ट ब्यूटाइल है। दिस बॉन्ड इज एक्सियल बिकॉज ये वर्टिकल है और ये क्या है, इक्वेटोरियल, बिकॉज ये टेढ़ा है। तो अभी इक्वेटोरियल पे कौन है, अभी इक्वेटोरियल पे हाइड्रोजन है, जबकि होना चाहिए किसको, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होना चाहिए टर्ट ब्यूटाइल को फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी। बट अभी टर्ट ब्यूटाइल इस केस में किधर है, इस केस में आपको दिख रहा है टर्ट ब्यूटाइल इज वर्टिकल, दैट इज अलोंग दिस लाइन। तो ये एक्सियल हो गया ना, ये क्या हो गया, एक्सियल पे हो गया। यहाँ पे ये क्या हो गया, इक्वेटोरियल पे हो गया। Hence A is more stable than B. हम लोग बाकी ग्रुप्स को नहीं देखेंगे, आई रिपीट, अगर टर्ट ब्यूटाइल आ गया तो हम लोग बाकी किसी भी ग्रुप को नहीं देखेंगे कि वो किधर है, वो जहां भी हो, लेकिन टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप मस्ट बी एट इक्वेटोरियल पोजीशन फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी। Hence A is more stable than B. Okay. Any doubts? Okay. All right. Last question. अगर मैं ऐसा बनाऊं और बोलूं कि इसमें से इसको कन्वर्ट करो चेयर फॉर्म में, पहली बात, इसको कन्वर्ट करो चेयर फॉर्म। ऐसा अगर है, लेट्स स्टार्ट। इसको 1 माना है, ओके, इसको अगर 2 माना है तो 3 4, ऐसा हो जाएगा। दोनों के दोनों चेयर फॉर्म्स करके देख लेते हैं। पहला वाला चेयर, करेक्ट, रेफरेंस क्या होता है मैंने बोला हमेशा, ये पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपका वर्टिकल, ये एक्सियल हो जाएगा ऊपर, और ये इक्वेटोरियल, राइट। तो यहाँ पे ब्रोमीन लगाना पड़ेगा बिकॉज ब्रोमीन इज ऑन वेज, तो ग्रोथ वेज मतलब ऊपर, इसमें ऊपर लगा दिया, और नीचे रहेगा हाइड्रोजन, तो ब्रोमीन इज ऑन द एक्सियल पोजीशन। अब यहाँ पे मैंने 2 इस तरफ अगर लिया है तो यहाँ पे 2 मुझे इस तरफ लेना पड़ेगा, सो दिस हैज टू बी 2। अब मैं इसको 2 नहीं ले सकता, क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे मैं 2 को इस तरफ ले रहा हूँ, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो यहाँ पे भी चेयर में मुझे एंटी क्लॉकवाइज आना पड़ेगा, करेक्ट। यहाँ पे 2 हो गया ये, तो ये ऊपर यहाँ पे 1 पे ऊपर आपका एक्सियल है, तो 2 पे नीचे एक्सियल रहेगा, तो 2 पे वर्टिकल लाइन नीचे बनाऊंगा मैं, और इक्वेटोरियल वाला ऊपर रहेगा। यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, फिर 3 पे कुछ नहीं है, 4th पे, राइट, अभी 4th पे वापस नीचे एक्सियल, ऊपर इक्वेटोरियल, आयोडीन इधर हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द चेयर फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। आप कैसे भी नंबरिंग कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कैसा करना है वो आपके ऊपर।
अगर चेयर किसी को हम अलग अलग बन जाएंगे ना, नहीं, क्यों? मतलब अगर हम 1 इस तरफ लेंगे, मतलब 1 लेने के बाद में 2 अगर दूसरी साइड लेंगे क्लॉकवाइज में, हाँ तो ठीक है, तो 6 पे आ जाएगा ना फिर, तो इसको तुम 6 लोगे, ये 6 पे करोगे, फॉर्म तो वही आएगा ना, ये 2 हो जाएगा, ये 3 4 ये 5 ये 6, तो 6 पे बना रहे हो ना तुम, ये 6 है ना, तो 6 पे ही बनाओगे ना तुम, ऐसा 2 पे थोड़ी बना रहे हो। 2 तो ये वाला है, 2 पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी 2 पे कुछ नहीं रहेगा, चेयर फॉर्म तो वही रहेगा ना, नंबरिंग कैसे भी करो। यस सर। नंबरिंग आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन हाँ यहाँ पे जिस तरीके से नंबरिंग किया है, चेयर में भी उसी तरीके से नंबरिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लॉकवाइज तो वहां भी क्लॉकवाइज, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज तो वहां भी एंटी क्लॉकवाइज, राइट? ओके, अब इस चेयर फॉर्म में कितने ग्रुप्स इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, मतलब हाइड्रोजन को छोड़ के, हमेशा जब हम लोग बोलते हैं ना कितने ग्रुप्स इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो हाइड्रोजन को छोड़ के कितना होता है, तो इसको छोड़ दोगे बिकॉज ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही है, ये वाला हाइड्रोजन, इसको छोड़ दो, ये वाला ग्रुप CH3 एंड ये वाला ग्रुप I, so CH3, I are at equatorial positions. Let me ask you a question. How many groups are at equatorial positions in this chair conformer? यहाँ पे CH3 और I आपके equatorial पे हैं. Right? This was about stability of chair conformers and converting from normal form to chair form. आपको एक वीडियो दिखाता हूँ मैं, उसमें वही है सब जो मैंने बताया है, just like the form of a video. So you can watch it and then the chapter is over. Think of a hexagon. Cyclo is a ring, hex is 6, and 8 tells us there's only single bonds. And here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. The problem with this structure is that all of the carbon atoms are sp3 hybridized. This means that carbon prefers to be tetrahedral with an ideal bond angle of approximately 109.5 degrees. But if you look at the structure, a planar hexagon has angles that are much, much bigger than 109.5. So what does that do for the structure? Let's take a look at the model kit. You can follow along by getting your own kit at layforpsi.com/kit. Here we have a cyclohexane where each of these represents a carbon atom with 4 bonds. So we have 2 going to the ring and 2 hydrogen atoms. If we look at a top-down view, it kind of looks like a hexagon, but take a look what happens when I try to flatten it out. Do you see how it looks like the kit is about to break? This molecule is very, very unstable, and if I leave it as a flat hexagon, it will break. Carbon atoms will compensate for this by trying to readopt that 109.5 configuration as follows. We'll take the nearby carbons and bend them, alternating up and down. Now it looks like a nice and comfortable conformation. Take a look. Every other carbon, one is up, one is down, up, down. But all the carbon atoms appear to have that comfortable 109.5 configuration, making it much more stable. In fact, cyclohexane is the most stable cycloalkane because it can adopt this configuration. I have seen chair conformations represented in some ridiculous ways that tell us nothing about what's going on, where your substituents are located, what atom is up or down. That doesn't work. Instead, let's see how to take our model kit and put it onto 2-dimensional paper using the drawing chair conformation tutorials linked below.
We'll start with the simple parallel lines for the chair, add the carbon that is facing up, the carbon that is facing down, and then we'll go ahead and add our substituents. I've added color substituents to help you follow along. Notice that I have red in the up position and blue in the down, and this is just to differentiate between the hydrogen atoms. Why is this called a chair conformation? Well, if I line it up like this, I want you to imagine a beach chair. This is where you put your head, this is where you put your body, this is where you relax your legs, and you just lay down and relax on this chair conformation. Studying organic chemistry, of course. Now let's see this in 2 dimensions on the screen. I've matched up the colors to help you see clearly what is going up, what is going down, and where everything faces. Now that we have it on the kit and in the drawing, let's try to understand exactly what it is that we're looking at. There are 4 things you need to recognize when looking at a chair conformation to help you understand everything that's about to follow, from stability, interactions, and even what's going to happen in your reaction mechanisms. The first 2 are simple. If I take the cyclohexane and I look at it from top down or look at it from the side, I want to clearly distinguish between the substituents that are facing up and out of the page compared to substituents that are facing down or going into the page. We've shown this on the kit with red hydrogens facing up and blue hydrogens facing down. And we'll show this on the hexagon where the red hydrogens are on a wedge coming out of the page and the blue hydrogens are in dashes going into the page. That was the easy part. A little more difficult to understand is the nature of the substituents, particularly those that are axial versus equatorial. We'll represent this on the kit where green is axial and white equatorial, but I'll draw it in gray because white won't show up on the screen. Here we have another chair conformation with green and white substituents, but you'll notice that here I alternated green, white, compared to the previous one, which had all the red going up and all the blue going down. And that's because we're looking at the specific orientation of each substituent. If you look at this from the chair conformation perspective, you'll notice that all of the green substituents are pointing straight up and down. In fact, if we plot this on a graph, they're approximately on the y-axis. Given that they're y-axis substituents, we call them axial. And the axial substituents, if drawn correctly, should be pointing straight up or straight down. If you look at it from the top view, the green substituents are pointing straight up and straight down at you. The white substituents don't really have a specific direction. They appear to be slightly angled up and slightly angled down. But if you imagine this chair as a globe, the chair component would be the middle of the circle, and all of the white substituents are pointing outward. So do you see how they perfectly surround the perimeter or the equator? And if we look at it from the side and know that it's going towards the outside, this is what we call the equatorial substituents because they're pointing towards the equator. They're not straight up, they're not straight down. You should draw them with a slightly angled line, and that represents equatorial. One point of confusion comes up with which direction to put your equatorial substituents. If you're drawing a chair like this one is pointing down and it's towards the left. This one here is pointing up, but it's towards the right. What do you do with the substituents that are pointing straight at you? Notice this one right here is directly at you. Well, you can't draw a straight line outward, so what you do is you tilt it slightly to the right, so you draw it to the right, or you tilt it slightly to the left and draw it to the left. I've seen drawings where people say, wait, that's incorrect, it should be right or it should be left. And the answer is not necessarily, it's pointing straight at you. But because we can't show that on paper, we tilt it slightly to one direction or slightly to the other direction, and both are correct. Students who follow my drawing tutorial do not lose points for careless mistakes because it's very easy to see on their drawings what is up, what is down, what is axial, and what is equatorial. And on your exams, that's exactly what your professor is looking for. Let's see what this looks like on paper, starting with a simple chair skeleton. We'll add the axial substituents, and I want you to recognize the pattern.
Remember on the kit, I showed you that the green and white were alternating because the axial went up, down, up, down. Well, we have the same pattern here. Up, down, up, down, up, and down. The white substituents will show in gray, and we'll start with this one going down, but it's equatorial, so it's not an axis, a straight up and down, but it's slightly down. And this one here is slightly up. This is the one that comes straight out at you. So if we look at it slightly from one side or slightly from the other, you just offset it a little bit so it doesn't look like it's straight down, and you're good to go. This one is to the left, and again to the left, one is up, one is down. And here, just like the one coming forward was straight at you, so it's going straight back. But since we can't show that, we offset it slightly to one side. Some professors will draw it on that side. Same thing. You're simply representing an equatorial substituent behind the ring pointing far away into the equator. Why is it so important to understand the relationship between substituents? In chemistry, every reaction is all about the stability. If a molecule is happy, it'll be stable and unreactive. If it is unhappy, it'll be unstable and very reactive. So we need to understand the interactions between the cyclohexane substituents to determine what is considered more stable and what is considered less stable. Let's look on paper first. Substituents that are in the axial position are relatively close to each other. They're pointing in the same direction. They can get in each other's van der Waals space or personal space, and that makes them very unhappy. In organic chemistry, if you're trying to understand the concept, relate it to a human characteristic to help it make sense. I want you to imagine that you're speaking to someone, but they're very, very close. Unless there's someone you know and you're comfortable enough getting very close, giving them a hug, you don't want strangers up in your personal space. And if someone's talking to you that closely, you'll either take a step back or push them away. And if you're too shy to do that, you're going to feel very, very tense and uncomfortable the entire time. Axial substituents, if they're really big, will get in each other's personal space, making them very, very uncomfortable. Let's take a look at the model kit. Looking at the axial substituents, they don't appear too unfriendly. This hydrogen and this hydrogen are relatively small, and they're almost in each other's personal space. But atoms have to be next to each other, so they'd rather have something small. You'd feel much more comfortable if a little kid stands next to you than if a big fat adult starts talking in your face, right? What happens if I swap that hydrogen for a methyl group? This carbon here has 1, 2, 3 hydrogens, and now the atoms are much closer to each other and they're starting to encroach on each other's personal space. What if I add a second methyl group, once again carbon with 3 hydrogens? Now look how close they are. They're definitely getting into each other's personal space. They're not comfortable enough to tell the other one to back up, so the entire molecule will bend, giving it more space. They're too close, it'll slightly bend out of the way. This is causing strain on the molecule, and this is what adds to the instability. Now I've added 2 more CH3 groups to our carbon, making it an isopropyl substituent, 3 carbons bound at the second carbon to the parent chain. And now look what happens. It looks pretty innocent and unassuming, but carbon bonds can rotate. And when this thing rotates, look at that. Definitely in each other's personal space, makes it very, very uncomfortable and very, very unstable. Axial substituents will have these diaxial interactions, and this is what you want to avoid at all costs. Here we have a slightly different version of the molecule, where the substituents are next to each other, but in the equatorial position. We went from 1,3 to a 1,2 structure. Notice here we have the methyl group, and here we have the isopropyl group. They're still a little bit close to each other, but the interactions are not as bad as they were before, and that's because they're in the equatorial position. The key to recognize here is when a substituent is equatorial, it points out to the middle of nowhere. It's not pointing into the face of another axial substituent, but instead it points out to nowhere. There's
much less going on there. If you think back to Newman projections, tutorial series link below, you'll see that we do have some gauge interactions going on here, but it's much, much less unfavorable compared to the diaxial interactions that we saw earlier. What does this mean? Axial substituents are highly unfavored, equatorial substituents are highly favored, and to draw a stable molecule, your goal is to put as many of the big and bulky substituents in the equatorial position, where the bulkier it is, the more likely it wants to be equatorial, and the rest can be axial because they'll be less unfavorable. Here we have the two molecules on screen, and they're not the same structure. I did not convert one into the other, but on the kit, I actually broke off bonds and moved things around. Notice that if this is carbon 1, then the methyl is on carbon 3. Here the methyl is on carbon 2. What I want to show you here is how in the first structure, where the isopropyl and the methyl are both axial, we have that diaxial interaction, that invasion of personal space that makes it very unstable. In the second structure, it almost looks like the two groups are closer to each other, so it looks like it should be less stable. Think back to what we saw in the model kit, and if you're not comfortable, rewind the video and look again. In the diaxial interactions, they were right on top of each other. They were too close. In the equatorial, even though there are neighboring carbons, notice I brought the groups closer together, but they were facing out in different directions on the equator. This one right here is pointing down and towards the back. This one right here is pointing up, coming a little forward. And that means they're not that close to each other. They're not in each other's personal space. And that makes it much, much, much more stable. The fact that one is cis and one is trans has nothing to do here because we're simply focusing on the diaxial versus the equatorial interactions. But how do you take a molecule that has diaxial interactions and make it more stable to put the substituents equatorial without breaking bonds like I did? That happens through the interconversion or ring flip of the chair conformation, and that's exactly what we'll look at in the next video. You can ओके सो वही जो स्टेबिलिटी के रूल्स मैंने दिए वही इसमें सेम रूल्स बताए. सो चेयर कन्फर्मर्स के लिए आप ड्रॉ करके ही समझ सकते हो, वरना यू कैन नॉट अंडरस्टैंड. जब आप ड्रॉ करते हो हमेशा याद रखो दोनों के दोनों चेयर फॉर्म्स आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे. ये वाला भी ड्रॉ करके देखो, ये वाला भी ड्रॉ करके देखो, एंड फाइनली यू हैव टू सी कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है. ओके आपको दोनों ड्रॉ करके देखना. यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे हमारा ये 1 है, यहाँ पे एक्सियल ऊपर है, यहाँ पे एक्सियल नीचे है. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर अल्टीमेटली. यहाँ पे एक्सियल ऊपर है, यहाँ पे एक्सियल नीचे है. अगर यहाँ पे एक्सियल ऊपर है तो यहाँ पे इक्वेटोरियल नीचे हो जाएगा और यहाँ पे इक्वेटोरियल ऊपर हो जाएगा. ये आपको पता करना है, याद होना चाहिए. अकॉर्डिंगली आप ऑल्टरनेट पे ऐसे ये फिर एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, राइट, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ऐसा हो जाएगा. यहाँ पे भी भैया ये एक्शन है, यहाँ पे ऊपर एक्शन हो जाता, नीचे इक्वेटोरियल, एक्शन इक्वेटोरियल, एक्शन इक्वेटोरियल, एक्शन इक्वेटोरियल, एक्शन इक्वेटोरियल. So this is my reference here. This is my reference here. इसके हिसाब से करना है. Rules for stability क्या है? Maximum groups should be at equatorial positions. जितने भी ग्रुप्स है वो सब ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स होने चाहिए इक्वेटोरियल पोजीशंस पे, तो ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर टर्ट ब्यूटाइल आ गया, टर्ट ब्यूटाइल, तो सिर्फ टर्ट ब्यूटाइल पे ही फोकस करो, बाकी ग्रुप्स को तभी नहीं देखना है. तभी हमें सिर्फ ये देखना है कि जो टर्ट ब्यूटाइल का ग्रुप है दैट
must be stable, that must be present at an equatorial position. So जिस chair form में tert butyl equatorial position पे रहेगा, that is going to be the more stable chair form. Tert butyl group अगर हो गया तो याद रखोगे. Whenever you come across tert butyl group, you have to ensure that tert butyl group is at equatorial position for greater stability. Okay, with this the chapter gets over.